Hello students, good morning, good afternoon, good evening. In plus one accounts, now we are moving to theoretical chapter. There are two different theoretical chapters. मैं इसको merge करके करवा रहा हूँ. So in this you'll get the lectures related to number 1, computer accounting. Accounts में computer का क्या काम है and how computer works in accounting system. 2, provision and reserves. हमने ट्रायल बैलेंस में किया हुआ है. सभी प्रोविजन, सभी रिजर्व्स और सभी फंड्स का बैलेंस क्रेडिट होता है. तो व्हाट इज प्रोविजन, व्हाट इज रिजर्व? So basically these are two different chapters. We are starting with computer accounting. Worksheet 6 जिसमें 2 पॉइंट्स हैं, 6.1 and 6.2. What is computer? For a layman, a computer is an electronic device which possesses raw data to give meaningful information. There are many definitions, you may do any one. I am doing as per the Oxford Dictionary. It is an electronic machine for making calculations, storing and analyzing the information fed into it. Whatever we put the information, they store that, they analyze that, they interpret that. Above definition explains that computer is an electronic device which accepts unorganized or unarranged facts and figures, process them as per the set of instructions. Please underline set of instructions. ये हम instructions देते हैं उनको. Fed into it and produce meaningful information. Computers are so fast that in the slowest speed of performing basic information is measured in microseconds. The whole library can be stored in a usual computer. So the definition of a computer. Now what is the ability of computer? What is the importance of computer? Why computer is important? Please underline features and capabilities of computer. First, scientific approach. These are not based on emotions, it is based on IQ, the intelligence quotient. A computer uses scientific approach while performing the work assigned to it. Unlike human beings, there is no question of emotional or subjective evaluations. It always acts in a neutral manner. It is never affected by opinions, judgments and views of anyone. 2, automatic machine. You need to just open it and give the details as per the set data, unorganized data. If you want to, it is the automatic information उसमें crept in आ जाती है as per the software. Like अगर आप कोई भी गलत वर्ड लिखते हैं गूगल पे या वर्ड यूट्यूब पे, तो वो डू यू मीन दिस, वो उसको चेंज करके शो कर देते हैं. Once data and instructions are fed into it, it executes them one by one without human intervention. In this way, it automatically executes instructions one by one till the last instruction is executed. Human instructions are not required. However, a little help may be given by the human operator. 3, high speed. Computer is having a very high speed as compared to the human being. The speed of computer is quite comparable to that of light. They are known for the extremely high speed. Their speed is so high that it is expressed in micro or nanoseconds. And what is the microsecond? 1 upon 10 lakh per second. For example, if a person takes about 5 minutes to do some calculations with paper and pencil, a computer can easily do it in a microsecond. I know आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे why we are doing this in +1. ये तो कुछ 6-7th क्लास की बात है, कंप्यूटर और उसके एडवांटेजेस. बिकॉज हमें कंप्यूटर इन अकाउंट समझने के लिए पहले कंप्यूटर को समझना होगा. दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस. Storage or memory. When I was in 7th, 8th, 9th, we used to go to cyber cafes. Cyber cafes में हमें कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट बनाने होते थे. And there is a hard disk. आज तो वो चलती नहीं है. There is some floppy disk. उसके बाद we used to store into CDs. Then we used to store it in pen drives. Pen drives तो आपके पास भी होंगी. And pen drive भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 2-3 साल. उसके बाद द डेटा विल बी स्टोर इन क्लाउड्स.
So this is something storage or memory, not technically clouds, but it is called clouding system. The storage device in a computer is called its memory. There are different storage devices like floppy disk, magnetic disk, microfilms, hard disk, zip disk, etc. These storage devices, including primary memory, enables computer to store large volumes of data. Fifth, accuracy. Computer is 100% accurate. सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कंप्यूटर कब गलती करता है, जब ह्यूमन ऑपरेटर गलती करता है. वी से इट्स गिगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट. कंप्यूटर में गार्बेज डालेंगे तो बदले में गार्बेज ही मिलेगा. Only in that case computer makes a mistake, because it is not the computer which makes a mistake, it is the human operator who makes the mistake. Accuracy is the most important feature. The net output is highly reliable because computer operations are error free. Computers work with 100% accuracy, but errors, if any, are solely due to wrong input of data by operator. In computer terminology, it is referred as GIGO. What is GIGO? Garbage in, garbage out. Diligence. Fatigue, boredom, tiresome attitudes are indispensable to human nature. 8 घंटे की जॉब है, बीच में से आपको 3 वॉशरूम ब्रेक चाहिए होती हैं, 1 टी ब्रेक चाहिए होती है, 1 लंच ब्रेक चाहिए होती है. But computer never suffers at the hand of a mental and physical fatigue. It works continuously without a break and does not suffer lack of concentration. Once instructions are fed, it can perform the same job any number of times in exactly the same manner. जैसे मुझे 60 स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, मैं 60 को इकट्ठे ही पढ़ा पाऊंगा. एक बच्चा एब्सेंट हो गया, दोबारा उसे पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. जितना मर्जी मैं 100% इनपुट पुट करूँ, मैं उसको उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा जो मैंने पहले बैच में पढ़ाया है. बट नाउ इन अ वर्चुअल क्लास मैंने रिकॉर्ड करके सिस्टम में डाल दिया है. आप वो लेक्चर जितनी मर्जी बार देख सकते हैं. 60 स्टूडेंट्स 60 डिफरेंट टाइम्स पे वो लेक्चर देख रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट द डिलिजेंस मीन. वर्सटैलिटी. Computers are called versatile machines because the same computer can be used for performing a wide variety of jobs. जब मैं यहाँ पे ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस टाइम मैं +2 इकोनॉमिक्स रिकॉर्ड नहीं कर सकता, या मैं इकोनॉमिक्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं उस टाइम पे +2 अकाउंट्स के स्टूडेंट्स का डाउट सेशन नहीं ले सकता, लाइव सेशन नहीं ले सकता. बट कंप्यूटर डूज द वर्सटाइल जॉब. Same computer can be used for invoicing, sale analysis, and even for playing chess. This is called multitasking. Please underline multitasking. The logic behind this is installation of different softwares to suit the need of the user. You put the different software in your mobile only. अगर मोबाइल पे बात करें तो there should be a Zoom app और Teams app जिस पे आप स्कूल के लेक्चर्स लगा रहे हैं. There should be Facebook जिसे आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए. देयर कुड बी PUBG जो आप गेमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं. एंड देयर इज़ WhatsApp जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है. एंड दैट इज़ कॉल्ड वर्सटैलिटी. दैट मोबाइल इज़ नथिंग बट अ स्मॉल कंप्यूटर इन योर पॉकेट. बाइनरी सिस्टम. अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 2 स्टेट्स, ट्रू और फॉल्स, 1 और 0. कंप्यूटर में कोई भी लैंग्वेज वैलिड नहीं है. जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी कोडिंग होती है 1-0 या 0-1 से. अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 1 लैंग्वेज विच इज़ बाइनरी, विच इज़ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर मस्ट बी इन द बाइनरी फॉर्म. द 0 and 1 आर कॉल्ड बिट्स. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बाइनरी सिस्टम का. लाइक 23 को अगर कंप्यूटर में लिखना है तो 23 को लिखने के लिए हम लिखेंगे 10111. जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 23 लिखेंगे या गूगल में 23 लिखेंगे तो गूगल सिस्टम में 23 नहीं शो कर पाएगा, वो शो कर पाएगा 10111 एंड दैट गोज टू द मैसेज कंप्यूटर 23. और आपको इंटरफेस पे 23 नज़र आता है. कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग है वो 10111 में हो रही है. रिडक्शन इन पेपर वर्क बहुत कम हो गया है. आज के टाइम पे आप घर पे बैठ के कोई भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं विदाउट एनी पेपर. लोन अप्लाई कर सकते हैं. आपको सॉफ्ट कॉपीज डाउनलोड करनी है, यू नीड नॉट मेक द फोटो कॉपीज एंड ऑल. मोबाइल फ़ोन के बिल्स पे करते हैं, आपको मैसेज आता है योर फोन बिल हैज़ बिन पेड. पेटीएम, आप में से मेजॉरिटी ने मेरे को ऑनलाइन फ़ीस पे की है. आपने ऑनलाइन फ़ीस पे की, हमने आपको ऑनलाइन रिसीट पे कर दी, दैट्स इट. पेपर वर्क का काम ही नहीं है.
The use of computers for data processing has helped management of business organizations to cope with the increasing problem of paper handling by medium of electronic data processing and elaborated structured databases. These are the 9 abilities, capabilities and the features of computers. Importance of computers. I want इनमें से आप कोई 6 को मार्क करेंगे. नॉर्मली ये क्वेश्चन 3 मार्क में या 4 मार्क में आता है, बट फॉर 6 मार्क यू नीड टू हैव द 6 पॉइंट्स. पढ़ने सभी हैं, लर्निंग के लिए यू नीड टू हैव ओनली 6 पॉइंट्स. राइट एनी 6, कोई 6 पॉइंट्स पे टिक कीजिए एंड आई एम गिविंग यू 2 minutes टू रीड इट प्रॉपरली. 2 minutes, read the 6 points that you are supposed to learn, and with 6 points it is your wish. And a definition of a computer. 2 minutes, have a look on that. Speed up. Speed up everyone. Thirty more seconds. So, moving on. Elements of computer system. Computer system के elements कौन से हैं? Please underline elements, write down components. Elements of computer system, please underline elements, its components. The 2 elements, components of computer system are, number 1 is hardware, number 2 is software. What is hardware? जो एलिमेंट्स आपको नज़र आते हैं, यू मे सी माउस, बारकोड रीडर, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, एलईडी स्क्रीन, ये सब आपके हार्डवेयर हैं. एंड सॉफ्टवेयर जिस बेसिस पे वो वर्क करता है. एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी फेल्ट, टच्ड और सीन, that which has the physical existence, falls in the category of a hardware. The above discussed components fulfill the same for keyboard, mouse, VDU, printer, scanner, CPU is all hardware. 2. Software. Software वो एक सिस्टम होता है, प्रोग्राम होता है जिसे हम बाइनरी सिस्टम में अपलोड करते हैं, जिससे कंप्यूटर वर्क करता है. और ये 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं. वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, अदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जिनके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है, आप ओपन करके सी ड्राइव ओपन करेंगे. सी ड्राइव, माई कंप्यूटर, माई पीसी, माई लैपटॉप पे क्लिक करके सी ड्राइव में जाएंगे. आप देखेंगे आपने अभी तक कुछ भी सेव नहीं किया, बट सी ड्राइव में काफ़ी छोटी छोटी फाइल्स पड़ी होती हैं. वो होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर. और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप खुद डाउनलोड करते हैं. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फोन. जब आप मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं नया, आप उसे बैटरी को चार्ज करते हैं.
उसके बाद इंटरनेट वाईफाई के साथ कनेक्ट करके जीमेल आईडी डालते हैं तो आपको कुछ ऐप्स नज़र आती हैं, वो होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते, डिसेबल कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते। और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है जो प्ले स्टोर से आप परचेज करते हैं या फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं, दे आर कॉल्ड एप्स। एप्लीकेशन से ही एप्स बना है, वही से ही प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, दैट ऐप इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर. System software is a set of one or more programs designed to control the operation and extend the processing capability of a computer system. These software are generally prepared by computer manufacturers or mobile. Computer is anything जो हमें calculation को easy करे, store कर ले. Mobile phone is an example of a computer also only. In general, a computer system software perform a variety of functions like file editing, storage management, I/O management, etc. Some of the most commonly known type of systems are operating system, Windows 7, Windows 19, Windows 2012. Every computer has an operating system software which takes care of an effective and efficient utilization of all the hardware and software components like MS-DOS, Windows 7, etc. जिनके पास iPhone है, iOS is the operating system. जिसके पास सैमसंग का फोन है, एंड्रॉयड इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. जिसके पास विंडोज का फोन है, विंडो 19, विंडो 7 इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर. Programming language translator are system software which translate the instructions prepared by programmers in a programming language into a form which can be interpreted and executed by a computer system. Utility software. Utility software programming language means that converts the language. जो आप इंटरफेस से लैंग्वेज डालते हैं, जो आप इनपुट देते हैं लैंग्वेज का, और वो जो लैंग्वेज का उन्हें इनपुट मिलता है और वो आपको आउटपुट देते हैं, दैट लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज द सॉफ्टवेयर. एंड रिपीट, ये सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं किए जा सकते. दिस इज द रीजन फॉर दैट, बिकॉज अगर वो डिलीट हो जाएगा आप वो सिस्टम को यूज ही नहीं कर पाएंगे. Third, utility software. Utility software is a set of programs which help users in a system maintenance task and in performing tasks of a routine nature. Some of these tasks commonly performed by the utility software includes formatting of a hard disk, floppy disk, taking up backup files stored in a hard disk or a floppy disk, etc. Utility software का मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ. मोबाइल फ़ोन में जो गूगल बना होता है, दैट इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. आज के टाइम पे व्हाट्सएप पहले से इनेबल होके आता है क्योंकि इट्स अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. इट्स एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स के अंदर कैलकुलेटर होता है, लैपटॉप के अंदर कैलेंडर होता है. दीज आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. फोर्थ, डायग्नोस्टिक रूटीन. These programs are usually written as provided by the computer manufacturer. The assistant programming debugging like antivirus. 3 months के बाद डेटा सारा चेक होता है और एंटीवायरस रिक्वायर्ड होता है तो वो बता देता है. They usually trace the processing of the program being debugged. The diagnostic routines are however also often treated as a category of the utility or a service program. So we have operating software. There are two elements. I repeat, there are two elements or components of computer. One is hardware, other is software. In software we have two. One is system software, other is application software. In system software we have 4. The operating, the base, language that translates, diagnostic and utility. Diagnostic is basically considered as utility only. Next, application software, app. जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर में नहीं है, आप खुद डाउनलोड करते हैं, either by paying it or free. These programs are employed by the user to perform some specific functions. These softwares are required to make the computer useful for the people. The term application software describes program that helps people to accomplish their specific task. Application software has been written to do almost everything ranging from word processing to reserving a train seat. Basically, आप में से कईयों ने learning.commercevilla.in का शॉर्टकट बनाया होगा अपने मोबाइल फ़ोन में. वो एक तरह से ऐप सॉफ्टवेयर हो गया. आपको बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट क्लिक ऑन दैट,
बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट क्लिक ऑन दैट, पासवर्ड भी सेव किया होगा कंप्यूटर ने, and here you got the lectures. And this is something called app software. Basically application software is of two types. First, general purpose application software like word processor, spreadsheet, database management, MS Word. आजकल MS Word तो पहले से ही डाउनलोडेड फॉर्म में आता है, मोबाइल फ़ोन में कईयों में करना पड़ता है, कईयों में पहले से रहता है. 2. Special purpose application software. Examples are accounting, inventory, production management, etc. टैली सुना होगा आपने, या हम जहाँ पे यू गो टू डोमिनोज, यू ऑर्डर समथिंग, दे गिव यू इनवॉइस और उनके रिकॉर्ड में आ जाता है कौन सा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है. यू गो टू मॉल, यू परचेज अ शूज़, यू आस्क क्या इसका छोटा नंबर है, दे चेक द कंप्यूटर, बेसिकली दे चेक द इन्वेंट्री कंट्रोल. आई रिपीट, बेसिकली दे चेक द इन्वेंट्री कंट्रोल. और उनके स्प्रेडशीट में आ जाता है कि 8 नंबर का शू अवेलेबल है या 7 नंबर का अवेलेबल है या नहीं. एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. इसको हम अभी आगे स्टडी करने वाले हैं. नाउ विल मूव टू द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट आर द एबिलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. कंपोनेंट्स में वी हैव स्टडीड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के अंदर वी हैव स्टडीड 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें एक स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की गई है. इसको भी इन डिटेल पढ़ा जाएगा. वो टॉपिक मैंने स्किप किया अभी फॉर द टाइम बीइंग, दैट विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर. सो नाउ जंप टू द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के कुछ नुकसान भी है. एज अ कॉइन हैज 2 साइड्स. 1. Lack of common sense. Computer does not have the common sense. कई बार आपने देखा होगा, आप उबर बुक करवा रहे हैं, ओला बुक करवा रहे हैं, सो इट मे शो अ कार ऑन अ कार. और समटाइम्स न्यूज़ में सुना होगा नेविगेशन कहीं डेड एंड में ले जाती है कार को, बिकॉज कंप्यूटर डज नॉट हैव द कॉमन सेंस. A computer can perform only those tasks which can be defined in a finite number of steps. This, then this, then this. In common sense, कोई finite number of steps नहीं होते. The application of logic has to be defined clearly. They do not have the common sense. यहाँ पर दे का मतलब हो रहा है robotics. Robotics, that is computer. 2. Zero IQ. Even जब बच्चा पैदा होता है उसका कुछ IQ रहता है, उसे पता है भूख लगनी है तो रोना है तभी खाना मिलेगा. एंड कंप्यूटर हैज 0 IQ. कंप्यूटर आर लाइक डम ड्रिवन कैटल्स विद 0 इंटेलिजेंस क्वेश्चन. कंप्यूटर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टू परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्शन, हाउएवर माइन्यूट इट मे बी, जितना मर्जी छोटा हो. 3. सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट. Computers are very sensitive to dust particles and other impurities, so they need to be protected from foreign particles to ensure proper working, like a water in a phone or a dust in a adapter, etc. 4th, lack of decision making. कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले पाता क्योंकि डिसीजन लेने के लिए IQ चाहिए. Since computers do not have thinking ability, so they cannot take decisions. So computer have no wisdom and evaluating capabilities. On the other hand, humans are bestowed. Bestowed means उनके पास gift है with ability which makes them superior to the computers. 5th, please mark star, a very very important, hacking. कंप्यूटर्स को हैक किया जा सकता है. घर में चोरी होनी है तो हम CCTV कैमरास लगा लेते हैं. घर में चोरी होनी है तो वी कैन पुट अ लॉक. कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तब भी उसकी हैकिंग हो जाती है. कोई भी चीज़ जो इंटरनेट पर है उसे हैक किया जा सकता है. आई रिपीट, एनीथिंग विच इज़ ऑन कंप्यूटर दैट कैन बी हैक्ड. चाहे डिफिकल्ट हो चाहे ईजी हो, दैट कैन बी हैक्ड. एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अ कंप्यूटर. Individuals and business houses use computers to save sensitive informations such as credit card numbers, social security number, bank account information, addresses, information related to computers, and research and development information. These information can be hacked by the hackers, which may cause financial loss to them.
It might also take organizations susceptible to legal action in case effective safety measures are not implemented. पेटीएम के सीईओ, एडिशनल सीईओ जो थे, आज से 2 कुछ साल पहले उन पर केस वो लगा है, बिकॉज बहुत सारे पेटीएम नंबर्स हैक किए गए साइट पे और लोगों के सिक्योर्ड नंबर्स, पासवर्ड्स लीक हो गए. सेम डज विद टिकटॉक. यू नो दैट आपके फ़ोन का सारा डेटा लीक हो रहा है, एंड दिस इज नथिंग बट हैकिंग, बट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड हैकिंग. एक ऐप इस पर्पस के लिए बनाई गई है. साइबर क्राइम्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग दीज डेज, नॉट ओनली बाय द इंडिविजुअल बट बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज. बल्कि लोगों ने इसका बिजनेस बना लिया है. दे हायर 3-4 people, a well educated staff, and they do frauds. 6th, heavy reliance on computers. Please underline reliance. Please underline reliance. What is reliance? उस पर भरोसा करना. बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे हम डिपेंडेंट हो गए हैं. रिलायंस, प्लीज अंडरलाइन. डिपेंडेंसी. Reliance, please underline. Dependency. These days, business relies so heavily on computers that a mere power loss or system crash can have serious ramifications. लाइट चली जाए या सिस्टम खराब हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है, बिकॉज हम बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर पे डिपेंडेंट हो चुके हैं. Valuable files might be lost, so it is very important to create a backup for this information in proper form or by some other measures. Cost considerations. Small business के लिए ये बहुत expensive हो जाता है. एक तो कंप्यूटर की इन्वेस्टमेंट, उसके बाद उसमें अकाउंट्स को जो रखना है, अकाउंटेंट की इन्वेस्टमेंट, फिर बैकअप फाइल्स की इन्वेस्टमेंट, और सॉफ्टवेयर्स आपको रिन्यू करवाने पड़ते हैं आफ्टर क्वार्टर और एनुअल बेसिस, उसका खर्चा. In spite of continuous reducing prices, installation of computer is still a costly affair. The software for the computer system needs specialists and involves high installation and the maintenance cost. High obsolescence cost. Please mark star. High obsolescence cost. Now this is very important. इसको मैं ऐसे समझाता हूँ. कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंडिया एक आईटी सेक्टर में बूम कर रहा है. इंडिया की जो इकॉनमी है वो आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर में बूम कर रही है. जैसे चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, यूएसए फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे अच्छा है, न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा है. इंडिया का जो टैलेंट है वो आईटी सेक्टर में बाहर नज़र आ रहा है, निकल रहा है पूरे वर्ल्ड में. नाउ द पॉइंट इज, बहुत ही ऑब्सोलियंस कॉस्ट है ये. क्यों? हर 3 साल बाद, 4 साल बाद जो चीज़ नई डाली होती है वो पुरानी हो जाती है. आप बीसीए कर रहे हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, 3 साल का कोर्स है या 4 साल का कोर्स है. पहले साल जो आप पढ़ते हैं एमसीए, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पहले साल जो आप पढ़ते हैं उसका पेपर देते हैं. जब तक आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होती है वो ऑब्सोलीट हो चुका होता है, वो मार्केट में चीज होती ही नहीं है. आपने फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ा, उस टाइम वो मार्केट में था, आपने उसका एग्जाम दिया, आपने क्लियर किया, उसके 2 साल बाद जब आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके आए वो सब कुछ चेंज हो चुका है. दैट मीन्स ऑब्सोलियंस कॉस्ट कितनी ज़्यादा होगी है ह्यूमन एडुकेशन की. ऐसे ही इंस्टॉलेशन, हार्डवेयर्स बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो रहे हैं. द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अंडरलाइन, इन इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, e⁻⁴ may result in high obsolescence cost. It may possible that scientific development may cause even recent installation as obsolete. Hence, obsolescence of computer further give rise to update the knowledge and skill of human resources. इंटरनेट की बात कर लेते हैं. 4G, 3G, 4G, 5G
एंड आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले या 20 साल पहले इनकमिंग कॉल्स भी एक्सपेंसिव पड़ती थी। इनकमिंग फ़ोन सुनने के लिए 20 रुपये पर मिनट देने होते थे, और इस टाइम पे कॉल्स फ्री हो चुकी हैं। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में सबसे चीप इंडिया में है। सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड ऑब्वियसली ऑब्सोलियंस कॉस्ट इज वेरी हाई। व्हाट इज ऑब्सोलियंस? आउटडेटेड। प्लीज अंडरलाइन ऑब्सोलियंस, आउटडेटेड। चीज बहुत ही जल्दी आउटडेटेड हो जाती है। देर आर 8 लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आप इनमें से मार्क करेंगे कोई भी 6, एनी 6 यू आर सपोज टू मार्क, और वो 6 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जरूर करेंगे, जो कि है 8 हाई ऑब्सोलियंस कॉस्ट, 5 डेंजर ऑफ हैकिंग, सेकंड 0 IQ, 0 IQ, 2 5 हैकिंग डेंजर, 8 हाई ऑब्सोलियंस कॉस्ट। इन तीनों के अलावा कोई 3 आप और स्टार मार्क कर लीजिए। एंड आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू रीड इट आउट। स्पीड अप। गिविंग यू 1 मिनट, रीड आउट ऑल द 6 पॉइंट्स विच यू हैव मार्क्ड। 3 मैंने मार्क करवाए हैं, 3 आप मार्क कर रहे हैं। स्पीड अप। गुड। कंक्लूजन। सो आज के लेक्चर में हमने जो किया है वो है व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, एंड व्हाट आर द एबिलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर। कंक्लूजन। Despite these limitations, computers are widely used in all spheres of our life. They are fast and accurate. Their advantages overpower its disadvantages. Overpower. Advantages इतने ज़्यादा हैं कि जो disadvantage है उसको इग्नोर किया जा सकता है. Recent research in artificial intelligence and parallel processing gave birth to the new era. बल्कि आपको पता ही है, जैसे दुबई के अंदर एक ह्यूमन रॉबोट वर्क कर रहा है एंड CBSE ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है. तो द फ्यूचर इज दिस ओनली. चलिए अब हम जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक अकाउंटिंग प्रोसेस. प्लीज मार्क स्टार. पेज 5 पे कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेटेड accounting process. As we know that accounting is a process of recording, classifying. अब मैं पहले अभी हमने पढ़ा कंप्यूटर, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कंप्यूटर इन अकाउंट्स. As we know that accounting is a process of recording, classifying, summarizing and interpreting the result of business transactions in a significant manner. The whole accounting process can be performed by the accounts clerk either manually or with the help of a computer. Both the systems can be used. However, there is a difference between the two systems. So one is manual accounting, other is automatic accounting. Let's see, there are 6 differences. 1. Recording. The business transactions are recorded first of all either in journal or subsidiary books. मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जर्नल को या सब डिवीजन करते हैं उसकी. बट इन ऑटोमेटिक वी जस्ट पुट एन एंट्री इन अ सॉफ्टवेयर. अ सॉफ्टवेयर नेम टेली
or any other is fed in the computer. Thereafter, business transactions are recorded in the computer operator. जरूरी नहीं है टैली ही करना है, कोई और भी हो सकता है. 2. क्लासिफाइंग. जर्नल और सब्सिडरी बुक्स के बाद हम लेजर बनाते हैं, बट कंप्यूटर सिस्टम में लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती, लेजर अपने आप ही बनता है. The recorded transactions are posted by the accounts clerk into ledgers so that each party-wise information can be obtained. In this way, the work of classification is performed. On the other side, the recorded data is stored in the computer and it is processed by the software itself to yield information in a classified manner. Please underline software itself. जर्नल बनाना पड़ता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके पोस्टिंग की जाती है. लेजर बनाना पड़ता है, लेजर अपने आप बनता है. समराइजिंग. आफ्टर लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू इंश्योर द लेजर पोस्टिंग इज करेक्ट एटलीस्ट अर्थमेटिकली. Thereafter, final accounts are prepared by the accountant. Transactions once recorded are stored in the database. Please underline stored in the database. आपने जर्नल एंट्री डाली, वो डेटाबेस में अपने आप एंट्री पहुंच के ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स को बनाती है. द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड टू यील्ड ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स. मीन्स हमें सिर्फ जर्नल डालना है और कुछ भी नहीं. 4th, existence of partial errors. Since the accounting process is performed by accountant clerk who may commit one-sided error like trial balance will not tally. जर्नल मैनुअल अकाउंटिंग में एरर्स के चांसेस हैं जिसे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता. Since recorded transactions are stored in the database and further processed is performed and completed by the software, so partial error can never take place. Please underline partial error can never take place. What does that mean? सस्पेंस अकाउंट कभी ओपन ही नहीं होता. अगर आप अकाउंट्स को कंप्यूटर में कर रहे हैं, बुक कीपिंग को कंप्यूटर में होल्ड कर रहे हैं, तो आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वन साइडेड एरर होता ही नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती ही नहीं है. ब्रैकेट में लिख लीजिए सस्पेंस अकाउंट नीड नॉट ओपन या विल नॉट ओपन. यूज ऑफ इंटरनल चेक. Since the complete work of accounting is performed by several clerks, so error and fraud may take place unless internal check technique is used in the organization. मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर आपको इंटरनल चेकिंग करनी पड़ती है क्वार्टरली, वीकली बेसिस पे, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही. Since computer is a machine, so while performing accounting work, it does not show any sort of biasness. Hence, internal check is not required here. कंप्यूटर में हमें कोई इंटरनल चेक की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कोई बायसनेस नहीं होती. विदाउट इमोशंस. लाइक अगर अटेंडेंस रजिस्टर लग रहा है, एक टीचर लेट आए हैं, जो अटेंडेंस रिकॉर्ड करता है दोनों फ्रेंड है, तो वो अटेंडेंस को गलत रिकॉर्ड कर सकते हैं कि टीचर लेट नहीं आया या वर्कर लेट नहीं आया. तो इंटरनल चेक सीसीटीवी कैमरा से होगा, बट कंप्यूटर सिस्टम में देयर इज नो नीड फॉर दैट. नीड फॉर, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है आज के टाइम पे. नीड ऑफ ओपनिंग एंट्री. मैनुअल अकाउंटिंग में हमें ओपनिंग एंट्री डालनी पड़ती है जो लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, बट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ओपनिंग एंट्री की जरूरत ही नहीं होती, वो अपने आप ही एंट्री को ओपन कर देती है. आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट ईयर ओपनिंग एंट्री इज पास्ड इन द जर्नल. No opening entry is passed here. The process of closing of accounts is performed by the software itself, and opening balances of accounts for the next year are automatically stored in the database. Please underline database. Entries database में ही record हो जाती हैं. What is database? Explanation लिख लीजिए ऊपर. Database refers to the system software. Database refers to the system software where all the transactions are stored
for future references, for future references, full stop. This is a very very important question. 90% केसेस में ये क्वेश्चन, आज के जो लेक्चर में मैंने आपको करवाया है, ये क्वेश्चन 90% केसेस में पूछा जाता है. What is computer? What are the advantages of computer? What are the components of computer? What are the limitations of computer? Is set aside. वो भी पूछा जा सकता है बट नॉर्मली नहीं पूछा जाता. एंड दिस इज द डिफरेंस जो जनरली पूछा जाता है. सो आज का कंसेप्ट यही है, आज प्रैक्टिस करने के लिए यही है. ये क्वेश्चन आप लर्न करके अपने नोट्स में मेंटेन करेंगे. जहाँ पे आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लर्न करेंगे और ये क्वेश्चन लर्न करके एक बार ज़रूर लिखेंगे. द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग. जर्नल डाला जाता है, मैनुअल, दिस इज मैनुअल, दिस इज कंप्यूटर. जर्नल में पोस्टिंग की जाती है, सब्सिडरी बुक्स में पोस्ट की जाती है, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जाता है, उसमें पोस्टिंग की जाती है. लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं, लेजर्स मेंटेन नहीं किए जाते, ऑटोमेटिकली बनते हैं. ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए. ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता, अपने आप ही बनता है क्योंकि लेजर ही उसमें ऑटोमेटिकली बनते हैं. पार्शियल एरर्स हो सकती हैं, इसलिए सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ सकता है. क्लैरिकल एरर्स, और यहाँ पर एरर्स होने के चांसेस नहीं है, इस वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी रहती है हर टाइम. इंटरनल चेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, सुपरविजन की ज़रूरत होती है क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं. इंटरनल चेक की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि कंप्यूटर पार्शियल नहीं होता. ओपनिंग एंट्री डालनी पड़ती है साल ख़त्म होने के बाद, और नए साल शुरू होने पर उसी एंट्री से आगे बिजनेस की एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है. ओपनिंग एंट्री की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट के बाद ओपनिंग एंट्री नेक्स्ट ईयर अपने आप ही पोस्ट हो जाती है. दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 1. कल हम करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, दैट इज लेक्चर नंबर 2. विल डू इट टुमारो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.